Good morning and warm welcome to you all. I'm Vaibhav, your host for today. Our topic for today is MSME Samadhan. It shall be taken by CA Divya Somani. She is a partner at Rangamani Associates, Ajmer branch, HO, Kottayam at Kerala. She shall cover understand MSME Samadhan, how to approach for delayed payments, game changer for MSME, payment dispute, ensure better cash flow and sustainable growth by overcoming payment barriers, followed by question and answer session. Our agenda for today is virtual inauguration by Dr. Sundar Kataria, invoking the blessing of deity, chanting of Gayatri Mantra, introduction of speaker, presentation by Ms. Divya Somani, question and answer session, and last closing session. About Sadgun Sangh, Sadgun Sangh is conceived and led by Dr. Sundar Kataria, driven with the mission to elevate the quality, safety, and environmental awareness levels of industry. Sadgun Sangh is a series of educative, informative events aiming to illuminate professionals on possible solutions to current issues of industry and economy. About Dr. Sundar Kataria, designation and organization, Chairman and Managing Director, International Certification Services Private Limited. His academic qualification, Doctorate in Business Management, followed by Mechanical Engineer. His experience are Rajasthan Atomic Power Project, India's first nuclear power plant at Rawat Bhata, Kota, built by Indian engineers. Worked as nuclear scientist for 11 years and successfully completed and commissioned the plant. Engineers India Limited, first batch of engineers to develop Bombay High offshore oil and gas fields, mega offshore complex platform, trunk and submarine pipelines, underwater inspection, oil and gas equipment, etc. DNV, world largest classification society, worked for 17 years at various capacity for the certification of fixed offshore installations, submarine pipelines, onshore projects, and personnel qualification. ICS. He is founder of India's first certification conformance assessment body established in the year 1999, provider of total quality solution, certification of management system that is ISO, inspection, testing and training qualification of personnel. His achievements and awards are receive Lifetime Achievement Award for the contribution for the corrosion technologies from NACE International by NIGIS under NACE USA, social worker, protection of life, asset, environment, and safety. So now I request Kataria sir to please virtually inaugurate the session. कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः Please join us for the recitation of the Gayatri Mantra. ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् Introduction of our today keynote speaker, designation and organization, partner at Rangamani Associate, Chartered Accountant, Ajmer branch HO, Kottayam at Kerala, her academic qualification, BCom,
Chartered Accountant, Diploma in Information System Audit, that is DISA, Diploma in International Financial Reporting Standards, IFRS, Company Secretary, Insolvency Professional. Her area of specialization and experience are guest speaker at series of G20 International Online Confluence Speaker, speaker at Sky High Symposium series conducted by Women and Young Members Empowerment Committee, speaker at more than 10 forums for financial and tax literacy drive conducted by Ajmer branch of ICAI, speaker on the topic A to Z about startups and at Chittorgarh, Pali, Ajmer, etc. Speaker on the ocean of opportunities for MSMEs, various government subsidy schemes in various colleges, Jana Shikshan Sansthan and other training centers to promote entrepreneurship. Please welcome Devya ma'am. Over to you, ma'am. Thanks a lot, Vaibhavji, for such a warm welcome. And thank you, Sadgun Sangh, for organizing such events regularly for all of us so that we are updated and we keep progressing in our work also. Before starting, may I know whosoever is participating in this session, whether you are professional or you're an entrepreneur, so that we can progress accordingly. Let us keep it interactive so that I will have a fair idea how to progress in my session. Yogesh ji, Arun ji, Pooja ji, Akshata ji, may I know whether you people are professionals or you are businessmen or businesswomen? Just to have a fair idea what the audience is. Okay, otherwise we can right away start. Okay, just let me share my presentation. I hope my screen is visible. Also, let me know if I have to speak in English only or I can use Hindi, English, whatever. And you can As you will both say, we will languages. proceed accordingly. Both languages. Thank you so Yeah, much. and just make it full screen, ma'am. The presentation, just make it full screen. Yeah, I'm doing that. Is it visible to all? Yes, ma'am, perfect, ma'am. Okay, thank you. Thank you. So, today's session is based on this MSME समाधान. अगर आप नाम देख रहे हैं इसमें MSME के लिए कुछ समाधान है, कुछ solution है यहाँ पे. ठीक है, so समाधान is basically solution. Why is it only for MSME? Because we are today dealing with MSMEs only. Normally, the bigger companies already have various recovery procedures and they don't have so much of fund problem with them because they easily get loans and other things. What is the basic issue for MSME is the funding requirement. They want to set up a business, they want to do well in the business, they want to grow, but at the same time, they have lack of funds. Whatever funds they have, they might be using them regularly, or they might be facing problems in the receivables, recovery of the receivables. So it is not always possible to go for taking loans and everything because liability also arises for that. And sometimes banks are not that much eager to provide you loan. So how to handle your funding requirement? That is what we are studying here in this session. So that is why I was just asking whether we, amongst the audience, whether we have any entrepreneurs so that we can directly connect for that. So if I talk about this particular slide, it talks about the biggest challenges faced by entrepreneurs. Every entrepreneur, whosoever is doing the business, requires funds. That is the basic need. You already know what
is the availability of resources with you. You already have the manpower, or you can have the manpower if you have the resources. Then you know the market, you can reach the market also. But again, it at each and every place you require funds. So if you have proper funds, you can use the technology very well. You can have good quality of raw material, and you can have the finished goods also well placed with you, and you can have a lot of marketing strategies to grow your business. So everything depends whether you have proper working capital to make the things going. So that is the crux of any business or any service provider. So funds is the basic challenge which we all face. And normally in business, the basic thing is everything does not go on cash basis. We do business on credit most of the time. So हमने कुछ सामान सप्लाई किया, हाथों हाथ हमें पेमेंट नहीं मिलता उसका। प्रॉब्लम यही होती है कि अगर पेमेंट हाथों हाथ ही मिल जाता तो हम उस फंड को वापस यूज करके दोबारा प्रोडक्शन करके फिर सप्लाई कर देते, तो एक वर्किंग कैपिटल चेन जिसे बोलते हैं वो रेगुलर चलती रहती। लेकिन ये जो हमारा गैप आ जाता है, हमने अभी आज सप्लाई किया लेकिन हमें पेमेंट मिल रहा है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मीन वाइल हम कहाँ से फंड्स लाएं टू फर्दर प्रोडक्शन, टू मेक फर्दर प्रोडक्शन। तो सैलरीज भी हमें कंटिन्यू पे करनी होती है, या हमारी और भी लाइबिलिटीज होती हैं जो हमें कंटिन्यू करना ही होता है। तो कुछ एक फिक्स अमाउंट तो हमें हमेशा चाहिए ही टू मेक दीज एक्सपेंसेस। तो आखिर ये फंड्स कहाँ से लाएं? क्या बार बार लोन लेते रहें इस चीज के लिए? लोन का भी आपको पता है कि इजी प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स टाइम, एंड सम बैंक्स इवन डू नॉट प्रोवाइड इजी लोन्स, और इंटरेस्ट रेट्स भी हाई होते हैं। तो वाई टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट सिचुएशन? क्यों ना ऐसा ही कुछ हो जाए कि हमारे रिसीवेबल्स हमें टाइम पे मिल जाए, जो हमें 2 महीने 3 महीने बाद मिलते थे हमें जल्दी मिलना शुरू हो जाए। तो अगर आपको पता है तो रिसेंटली देयर हैज बीन एन अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स, जहां आपने देखा होगा कि अगर एमएसएमईज को विद इन 45 डेज पेमेंट नहीं होता है तो वहां पे वो अमाउंट डिसअलाउ हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ द रिसीवर। आप इसको ऐसे समझो, अगर मैं एमएसएमई हूँ, मैंने कुछ अपना प्रोडक्शन किया और मैंने उसको सप्लाई किया किसी को, सपोज मिस्टर एक्स को मैंने अपना सामान बेचा, उन्होंने मुझे कहा मैं आपको पेमेंट 2 महीने 3 महीने बाद दूंगा। तो इनकम टैक्स लॉ ये कहता है अगर किसी एमएसएमई को अमाउंट, जो भी पेमेंट का अमाउंट था, वो 45 डेज में नहीं मिलता, तो जो मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने की पेमेंट का डिले कर दिया, जो 45 डेज में उन्होंने मुझे कर देना चाहिए था पर उन्होंने नहीं किया, तो ये अमाउंट उनकी बुक्स में डिसअलाउ हो जाएगा। ईयर एंड पे जब हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो बिजनेस के जो हेड होता है वहां पे हमें इनकम का जो प्रोविजन है वो इस तरीके से दिखाना होता है, कौन सा अमाउंट पे हो गया, कौन सा अमाउंट पे नहीं हुआ। तो अगर एमएसएमई से रिलेटेड जो भी अमाउंट है वो विद इन 45 डेज पेमेंट नहीं होता है तो दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज डिसअलाउड, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट एंड देन टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन दैट। तो एक तरीके से वो मेरे एक्सपेंसेस में काउंट ही नहीं हुआ। देखा जाए तो मिस्टर एक्स की बुक्स में ये इस तरीके से शो होगा कि उनको जो पेमेंट माइनस हो जाना चाहिए था उनके प्रॉफिट में से, ये अमाउंट एक्सपेंसेस के तौर पे कम हो जाना चाहिए था, वो रेगुलर बेसिस पे उनका कम नहीं हुआ और उनके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी आ गई। इनकम टैक्स ने ये चीज क्यों इम्पोज करी, मैं आपको उसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती हूँ। एमएसएमईज के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ होता है, एमएसएमईडी एक्ट जिसे बोलते हैं शॉर्ट में। ये 2006 में बन गया था। स्टार्टिंग से ही ये प्रोविजन है कि अगर एमएसएमई को 45 डेज में पेमेंट नहीं होता है, ठीक है, जब तक कोई अग्रीमेंट नहीं है तो 45 डेज चलेंगे, तो ये चीज वहां पे लिखा हुआ है। तो अगर 45 डेज में पेमेंट नहीं होता है तो जो एमएसएमई है वो डिमांड कर सकता है कि मुझे मेरा पेमेंट विद इंटरेस्ट दीजिए, और वहां पे इंटरेस्ट के लिए क्लियर लिखा हुआ है कि आप 3 टाइम्स द इंटरेस्ट, 3 टाइम्स किस रेट से मिलेगा, जो बैंक रेट चल रही है। सपोज बैंक रेट अभी 6% है, तो 6 का 3 टाइम्स यानी 18% इंटरेस्ट के हिसाब से आप वहां उनसे अमाउंट ले सकते हो। लेकिन एमएसएमईडी एक्ट में लिखने से ये चीज आगे लोगों ने प्रॉपरली उसको यूज नहीं किया, पीपल डिड नॉट यूज इट प्रॉपरली बिकॉज ये प्रोविजंस पता ही नहीं थे कि एमएसएमईडी एक्ट भी कुछ है और वहां पे ये प्रोविजंस लिखे हुए हैं। दीज वर नॉट स्ट्रिक्टली बीइंग फॉलोड बाय पीपल। So last year only there has been a change in income tax so as to
कोरिलेट दीज प्रोविजंस विद द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में आने से क्या हो गया, ये एक माहौल क्रिएट हो गया कि एमएसएमईज को टाइम पे पैसा पे करना है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनको फंडिंग का प्रॉब्लम आ जाता है, क्यों ना उनका टाइमली पेमेंट करवा के उनकी जो वर्किंग साइकिल है वो थोड़ी सी स्मूथ कर दी जाए। तो इसको स्मूथ करने के लिए ही उन्होंने ये प्रोविजन डाला कि 45 डेज के अंदर अंदर आपका पेमेंट हो जाना चाहिए। नहीं होगा तो आप बीइंग एन एमएसएमई एक केस फाइल कर सकते हो सामने वाली पार्टी पे कि इन्होंने हमारा पेमेंट नहीं दिया। आप समझिए इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। बहुत जगह आपको लगेगा कि इस प्रोविजन से प्रॉब्लम भी बहुत आई थी, क्योंकि जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो अगर एमएसएमई से रॉ मटेरियल लेते थे और वहां ये प्रोविजन डाल दिया कि आपको 45 डेज में ही पे करना है, तो जो बिगर इंडस्ट्रीज थी उन्होंने इस तरीके से कर दिया कि हम एमएसएमई से फिर लेंगे ही नहीं सामान, हम दूसरे इंडस्ट्रीज से ले लेंगे। तो वहां पे एमएसएमईज को ये दिक्कत आई कि ये प्रोविजन आके हमारे साथ कुछ गलत हो गया, बट ट्रस्ट मी यहाँ कुछ भी गलत नहीं है। ये प्रोविजंस हमेशा से एग्जिस्ट करते थे और ये आप ही के फायदे के लिए हैं। बड़ी इंडस्ट्रीज अगर आपको आज नहीं पेमेंट कर रही तो वो आगे भी हो सकता है आपको ऐसे ही डेफर करती रहेंगी, पेमेंट करेंगी ही नहीं। जो जेन्युइन पर्सन होगा वो ऑब्वियसली आपको पेमेंट कर देगा विद इन द टाइमलाइंस। तो ये प्रोविजन गवर्नमेंट इसीलिए लेकर आई जस्ट टू सपोर्ट दी एमएसएमई, कि अगर टाइम पे पेमेंट नहीं होता तो ये आपके जो डेटर्स हैं, एक तरीके से जिन्होंने ये सामान खरीदा है, उनकी बुक्स में ये शो होता रहेगा, और जब उनकी टैक्स ऑडिट होगी तो वहां अलग से हाईलाइट होगा कि कौन कौन से एमएसएमईज को टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ और उन पे इंटरेस्ट लाइबिलिटी कितनी बनी। ये वहां पे 3CD की जो रिपोर्ट होती है इनकम टैक्स की, वहां शो करना जरूरी है। Nowadays also it has become mandatory as per the Companies Act also, एक MSME फॉर्म है MSME 1 के नाम से, which is a half yearly return। एवरी 6 मंथ्स दे हैव टू रिपोर्ट ऐसे कौन से एमएसएमईज हैं जिनको टाइम पे पेमेंट नहीं कर पा रही है कंपनीज। तो अगर नहीं कर रहे हैं तो उसकी सेपरेट रिपोर्टिंग होती है। ये चीजें हमें नहीं पता, इसीलिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हम दोनों तरीके से इसको एंगल को समझते हैं। मैंने अगर किसी को सामान सप्लाई किया है, इफ आई एम द सप्लायर, व्हाट आर द बेनिफिट्स विच आई कैन हैव फ्रॉम द गवर्नमेंट, एंड एट द सेम टाइम सामने वाली जो पार्टी है, जिसने भी मेरा सामान खरीदा है, उनकी क्या लाइबिलिटीज होती हैं, व्हाट आर देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स द एमएसएमई। सो बोथ द एस्पेक्ट्स वी आर हियर टू डिस्कस, एंड इफ यू आर अ प्रोफेशनल, हाउ यू कैन गाइड योर क्लाइंट्स अकॉर्डिंगली। सो हमें हर तरीके से इसको चीज को समझना चाहिए। तो मेन जो हमारा प्रॉब्लम है हमने समझा, दैट इज रिलेटेड टू दिस डिलेड पेमेंट। If the payment is not made on time, then we cannot utilize that particular amount for our production purpose or maybe the investment purpose. So this delayed payment, if we are getting the payments in time, suppose, then we can make judicious use of those particular payments. So the bigger thing which came to the mind of the government was the why not to set up a set up some tool or set up some site officially wherein people can upload their cases, because normally क्या होता है, हम सामने वाले पे केस नहीं करते क्योंकि कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, इट इज नॉट वेरी इजी टू फाइल अ केस ऑन सम अदर पार्टी फॉर द डिलेड पेमेंट्स एंड गेट द फाइनल जजमेंट इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बिकॉज हमें पता है कोर्ट में जाने के बाद इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो क्यों ना एक एमएसएमई के लिए अलग से एक पैरेलल कोर्ट बना दिया जाए जहां पर वो अपने केसेस फाइल कर सकते हैं रिगार्डिंग दिस डिलेड पेमेंट। तो एक अलग ही बिल्कुल सेटअप आपके लिए कर दिया गया है। इट इज देयर इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट। एमएसएमई का एक फैसिलिटेशन काउंसिल होता है, आप वहां पे अपने केसेस, ये ऑनलाइन केसेस फाइल होते हैं, एंड देयर इज अ पर्टिकुलर ऑफिस ऑल्सो इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट wherein you can go and check the details. If you are not aware, you can go there and you can identify what are the document requirements and everything, which we will be discussing here also. So let us start with the normal problems which any businessman would face due to delayed payments. The first payment is obviously the cash flow disruptions. If the cash flows are not received on time, then obviously you will not be able to make the payments to your employees or maybe to procure the raw material and other stuff. Then if you already have a loan liability and you do not have a proper revenue,
then you might face a burden of payment of interest, and there might be faults of loan repayment also. Next is interest on delayed payments. Sometimes it comes to our mind that why not we charge interest on the delayed payments, but the other party which is not even paying your principal amount, they will obviously not pay your interest if there is no short legislation for that. Then next is disrupted supply chain. If we do not have sufficient funds, how will we procure the raw material for next production and so on? So the overall supply chain gets disrupted. Then resource allocation issues are also there. Then next is hindered expansion plan. If we have a proper source of funds, then obviously we will keep on expanding. We will keep on, investing in new and new plant and machinery, and we will expand our production. That will be our solo motive to grow. But if you do not have funds for the regular existence also, then how will you think of the expansion? That becomes an issue if you have this kind of delayed payment issues. Then obviously there is a loss of credibility because you will not be able to supply the other persons in time. Because of lack of funds, you will not be able to produce in time, and then the other contracts will also suffer. So ultimately, there will be a loss of credibility. And this is linked with the contractual breaches as well, because the production will get hampered, it will get delayed, and the other contracts will get breached also. Obviously, because of these issues of lack of funds, the productivity will reduce. You will not be able to generate as much production as you wanted. So there you will have a problem. Then again, at personal level, the entrepreneur will have the stress and anxiety all the time, whether the amount will be payable to him or not. Whether you are showing it in your balance sheet as receivable, but you already have this, stress in your mind that I don't know whether the other person will be paying me the amount or not. So there is always an uncertainty. Again, if you do not have funds, you will miss the opportunity to invest, you will miss the opportunity to take new contracts. So there is always a possibility of missing the opportunities if you do not have proper funds and time. So what are the various solutions available if this is the scenario for you? So first is you should have a proper document, a proper agreement at the time of inception itself. Like जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया जिसे मुझे परचेज ऑर्डर कहीं से मिला, तभी मेरे पास हाथों हाथ एक स्ट्रॉन्ग अग्रीमेंट रिटन मेरे पास रहे कि अगर आपने मुझे टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकती हूँ या मैं आपसे कुछ इंटरेस्ट अमाउंट ले सकती हूँ. But normally it all takes place on verbal terms. People do not form written agreements. So ये contractual agreements हैं अगर तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं होते मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन नहीं हो पाता. नेक्स्ट इज अगर आपका पेमेंट डिले हो गया है, देन इट इज योर ड्यूटी और you have to allocate a proper staff to keep on regularly follow up with the people who are not paying in time. But again that is time taking, and आपका एक रिसोर्स पर्सन वही काम में लगा हुआ है पूरा टाइम की रेगुलर फॉलो अप ही करते रहो पेमेंट्स के लिए, तो आपका माइंड पूरा जो फुल फ्लेजेडली हम प्रोडक्शन पे जा सकते थे वहां नहीं जाके अब हमारा दिमाग खाली इन चीजों में रह जाएगा कि पेमेंट के लिए हमें बार बार फोन करना है, फॉलो अप करना है, which is not a good thing at all. But if you do not have any other solution, then this is the utmost thing which we can do. We can regularly send WhatsApp messages, or we can call them, or we can send the emails to regularly follow with them. But at one point of time, it happens that those people do not attend your call. They just, block your number at times. Then what is the solution with you? So again, there is a problem. Then आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं कि कुछ पेमेंट इंसेंटिव्स आप दे सकते हैं. जैसे हम कहते हैं ना अर्ली अगर किसी ने पे कर दिया, जल्दी पे कर दिया, तो वी विल गिव यू डिस्काउंट. तो वो आप कैश डिस्काउंट या कुछ आप डिस्काउंट स्कीम्स आप रख सकते हो कि अगर आपने विद इन 40 डेज पे कर दिया या 30 डेज पे कर दिया तो वी विल गिव यू सम डिस्काउंट इन योर ओवरऑल पेमेंट. या फिर आप इसको दूसरा अप्रोच कर सकते हैं कि अगर आपने डिले किया पेमेंट में, देन वी विल impose penalties on you. But normally it happens that if you portray this kind of statement, or if you say that we will impose penalty if you do not pay in time, the other person will say
that why to procure material from you? I will go to some other businessman or to some other person. So बिजनेस लेने के लिए बड़ा मुश्किल है कि हम इस तरह के टर्म यूज करें जहां आप पेनल्टीज और ये चीजें बोले, until unless you are a very established enterprise. Then next is there are some financial management solution. आप अपने वर्किंग कैपिटल को थोड़ा सा इस तरीके से मैनेज करिए कि हमें पता है कि कितने टाइम में सामने वाले का पेमेंट आएगा, उसी अकॉर्डिंग हम आगे से आगे हमारा प्रोडक्शन वगैरह प्लान करें, या फिर हम कुछ लोन्स वगैरह लेके हमारा मीनवाइल काम करते रहें, बट दैट इज अगेन रिक्वायरिंग सम काइंड ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सोल्यूशन दो दे आर देयर, लोन वाली पॉसिबिलिटी आपके पास होती है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये वाली सब फैसिलिटीज होती हैं, बट दे ऑलवेज कम विद some interest element with that or some liability with that. So extra cost वहां पे हमेशा रहेगी. Then the last solution which is available with you is to file civil suit. क्यों ना हम पार्टी पे केस कर दें, बहुत टाइम से उन्होंने पेमेंट नहीं किया, let us file case on them, let us sue them. तो ये कोर्ट केसेस फाइल करना, लॉयर की फीस बहुत ज्यादा होता है और टाइम टेकिंग भी होता है, एंड अल्टीमेटली वी आर नॉट वेरी मच श्योर वेदर वी विल बी सक्सेसफुल इन दैट और नॉट. सो बिजनेस पे ध्यान दें या ये केसेस फाइल करते रहें, क्या करें? तो ये सारी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन गवर्नमेंट ने हमारे लिए निकाला है. सो हम आज बात करेंगे अपने पूरे सेशन के अंदर, व्हाट इज दिस एमएसएमई समाधान ऑल टुगेदर. आखिर क्या समाधान निकाला है गवर्नमेंट ने हमारे लिए. देन व्हाट आर द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद इट, व्हाई शुड वी गो फॉर दिस एमएसएमई समाधान. आखिर इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, हु कैन बी द एप्लीकेंट्स, हाउ टू अप्लाई, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर होगा, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. देन व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग. सो कोई स्पेशली हमें कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्या, वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे. फिर हम कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं उस पे बात करेंगे, और फिर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे वी विल टेक अप दैट, वी विल ओपन द फोरम फॉर दैट. सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एमएसएमई समाधान. MSME Samadhan is a web-based platform which is launched by the Ministry of MSME under the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006. जिस एक्ट की मैं बात कर रही थी, MSMED Act, उस एक्ट के तहत ही जो हमारी मिनिस्ट्री है MSME की, they have launched this web-based platform. Web-based platform का मतलब हुआ एक वेबसाइट है MSME समाधान के नाम से, जहां पे उन्होंने इस तरीके का अपना प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है. It provides a grievance redressal mechanism for MSME facing delayed payments for the buyers. So basically यहाँ पे होगा क्या, it is a kind of grievance redressal mechanism. आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप वहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं and they will provide solution for you. So कई बार होता है हमें प्रॉब्लम तो है पर हम क्या करें, किस तरीके से कहाँ कंप्लेन करें. So for that reason they have provided a web-based platform wherein you can approach and you can file the grievances. This is what is mentioned there. Then next is what is the purpose of having this MSME Samadhan. First and foremost is to facilitate faster resolution for the payment dispute. क्योंकि जहां भी पेमेंट का डिस्प्यूट होगा you will actually face a problem कि कहाँ कंप्लेन करें, कैसे उनके खिलाफ हम कुछ कार्यवाही कर सकते हैं. तो वो चीज के लिए यहाँ पे इन्होंने मैकेनिज्म डेवलप किया है और this portal is totally devoted for that purpose. The next is promote compliance with the MSME Act, which mandates payment within 45 days of goods and service receipt. So again, हमने बताया कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट बना हुआ था, इसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन है जहां लिखा हुआ है कि पेमेंट शुड बी मेड विद इन 45 days ऑफ द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, लेकिन वो प्रॉपरली हो नहीं पा रहा. क्योंकि नहीं हो रहा, इसीलिए गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से इनका सोल्यूशन निकालना था. For that reason they have taken this up in MSME समाधान. और मैंने आपको बता दिया कि इसको इनकम टैक्स से भी इसी तरीके से लिंक किया गया है. सो हाउ इज दिस बेटर, हमें यहाँ क्यों जाना चाहिए, हमें दूसरे मेथड्स क्यों नहीं लगाने चाहिए. देखिए आप दूसरे मेथड तो लगा ही रहे हैं, आप साथ के साथ यहाँ पे भी एक एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज टाइम सेविंग. ये एप्लीकेशन फाइल करने के कोई चार्जेस नहीं है, आप खुद इस पे ऑनलाइन जाके अपना कंप्लेंट दायर कर सकते हैं. ये बेसिक इन्होंने चीज बताई है कि देयर इज नो कॉस्ट रिलेटेड टू इट. इनफैक्ट जो आप कोर्ट में केस फाइल करते हैं उससे तो बहुत इजी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा. ठीक है, इनिशियली देयर इज नो कॉस्ट फॉर फाइलिंग द एप्लीकेशन. पूरा प्रोसेस हम अभी डिस्कस करेंगे हाउ इट गोज.
Then next is it ensures buyer accountability. Buyer यानी जिसने खरीदा है, यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट ही मस्ट पे विद इन 45 डेज. एटलीस्ट उसको एक नोटिस यहाँ पे जाता है गवर्नमेंट की तरफ से दैट यू हैव नॉट मेड द पेमेंट इन टाइम एंड इट इज सपोज टू बी डन विद इन द टाइमलाइन. तो एक बायर की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश होती है, क्योंकि हमारे कहने से तो वो पेमेंट कर नहीं रहा, तो हम ये गवर्नमेंट के थ्रू उसको एक नोटिस भिजवा रहे हैं कि यू हैव टू पे इन टाइम. तो ये एक बहुत बढ़िया चीज यहाँ पर है. द नेक्स्ट इज इट बूस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय टाइमली पेमेंट इन्फोर्समेंट. क्योंकि यहाँ पे हर प्रोसेस का टाइम बाउंड इन्होंने कर रखा है कि विद इन दिस मच टाइम एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो. फिर कितने टाइम में गवर्नमेंट उसको टेकअप करेगी, आगे क्या प्रोसेस रहेगा, एवरीथिंग इज टाइम बाउंड. तो आपको बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और आपको प्रॉपरली यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाते हैं. देन नेक्स्ट इज लीगल बैकिंग थ्रू फैसिलिटेशन काउंसिल्स. जो मैंने आपको बताया, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ फैसिलिटेशन काउंसिल टू टेक दिस अप, जहां आप प्रॉपर ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं एंड पूरा चीजें समझ सकते हैं. लेकिन एप्लीकेशन इसके पहले ऑनलाइन फाइल होगी, उसके बाद आप वहां पे जाके समझ सकते हैं, या फिर आप पहले वहां समझ लीजिए किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, देन यू कैन अप्लाई इट ऑनलाइन. इवन दोस पर्संस कैन हेल्प यू इन अप्लाइंग द एप्लीकेशन ऑन. What are the benefits associated with this? We will deal with the benefits from both the aspects, for the buyers as well as for the MSMEs, how it helps. So it encourages professionalism and timely transactions. ये हमें easy है, point समझ में आता ही है. Then it avoids legal repercussions and reputational damages. तो जो buyers हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम पे कोई legal case file नहीं हो, हमारी reputation खराब नहीं हो, so it is good if they make payments in time. So it is a benefit for them. Then again, for MSMEs, it protects the financial health. Ultimately, we will get the funds which we want. So this is a protection given to all the MSMEs by the ministry. Then it builds trust in the ecosystem altogether. So ultimately हमें payment मिल जाएगा, government की तरफ से हमें support है, so it builds a kind of trust with you all. So next is, what are the benefits enjoyed by the people? So इंटरेस्ट की जो हमने यहाँ पे बात करी थी कि जब भी आपका पेमेंट डिले हो जाता है, देन कैन यू चार्ज सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट? यस, it is mentioned in the act itself that the buyer is liable to make payment within 45 days upon the acceptance of goods and services. जैसे ही goods and services उसने लिए हैं, 45 days के अंदर अंदर उसको पेमेंट करना है, unless and otherwise there is some other agreement. Then next is, buyer is liable to pay the interest in case of delay in making the payment beyond 45 days. 45 days के अंदर अगर पेमेंट नहीं होता है, in that case you can always ask the buyer to pay the interest. हम तो कह रहे हैं but he will not pay, so यहाँ पे एक लीगल बाउंडेशन उसके ऊपर डाल दिया है. एमएसएमई एक्ट के थ्रू ये पॉइंट आ रहा है कि 3 times the rate of the bank interest can be imposed on the buyer if he is delaying the payment beyond 45 days. This is the most important point. इसकी वजह से आपको एमएसएमई समाधान पे जाना चाहिए. अगर आप दूसरी तरीके से जाते हैं तो आपको ये 3 times इंटरेस्ट का बेनिफिट हो सकता है ना मिल पाए. तो यहाँ अगर आप एमएसएमई समाधान के थ्रू जाएंगे, देन यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर दी 3 times इंटरेस्ट ऑल्सो. So let us understand what are the documents required for applying here in the MSME. First is the Udyam registration certificate. Suppose I am a supplier and I have supplied some goods to the other party and the other party has not made the payment within 45 days. Then I want to file an application on this MSME Samadhan portal. Then what are the documents which I require? So first is my Udyam registration certificate. So this is very, very important. If you do not have your Udyam registration, then firstly you should get your Udyam registration. अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. मान लीजिए मैंने गुड सप्लाई करे सामने वाले को, उसने मुझे पेमेंट नहीं दिया. अब क्योंकि सपोज हमने ये सेशन अटेंड कर लिया, अब हमें लगता है हमें एप्लीकेशन लगानी चाहिए उसके खिलाफ टू ऑब्टेन माय पेमेंट. तो अब यहाँ पर, हाँ जी, डॉक्टर सुरेंद्र कटारिया, कुछ आप पूछना चाहते हैं? प्लीज गो अहेड. I think you can unmute yourself and you can ask. Sir, do you want to say anything or should I continue? Ma'am, he's traveling.
I think. So अच्छा, you अच्छा, can just okay. continue. जी. ओके, फाइन, थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं आपको कह रही थी, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप ये समझिए बात को। या उन्होंने पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन से पहले हुआ करता था उद्योग आधार, तो वो पुराना ही रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उन्होंने ये नया उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। तो उस केस में क्या हुआ, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकेंगे। दैट इज द थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। मैं वापस एक बार केस आपको समझाती हूँ, मैं जी बताना चाह रही हूँ। आज आपने ये सेशन अटेंड किया, आपको अब ध्यान आया कि हाँ, मेरे पास भी तो कुछ ऐसे डेटर्स हैं जिन्होंने बहुत टाइम से पेमेंट नहीं कर रखा है, क्यों ना मैं उनके खिलाफ एमएसएमई समाधान पे केस फाइल कर दूं। तो जब आप केस फाइल करने जाते हैं तो ये वेबसाइट जो है, सबसे पहले आपसे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर मांगती है। एंड इफ यू डू नॉट हैव दिस उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विथ यू, यू विल नॉट बी एबल टू इवन स्टार्ट द प्रोसेस। सो मैंडेटरी है, जब भी डिस्प्यूट अराइज हुआ उससे पहले आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप समझिए। तो अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा तो ही आप उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट। तो उन्होंने गुड्स कब सप्लाई किए थे, उस समय उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आज अब अगर आप लेते हो इस उद्यम रजिस्ट्रेशन को, तो बैक डेटेड जो भी आपकी चीजें थी उसके लिए आप केस फाइल नहीं कर पाएंगे। सो फ्रॉम द डेट यू हैव दिस उद्यम रजिस्ट्रेशन, पोस्ट दैट ओनली यू कैन फाइल द केसेस। अगर उसके बाद आपने कुछ गुड सप्लाई किए हैं और फिर आपका पेमेंट नहीं आया, तो ही आप क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं यहाँ पे। एम आई क्लियर ऑन दिस पॉइंट? ये बहुत जरूरी है जानना। इज इट ओके, कैन आई गो अहेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज उद्यम रजिस्ट्रेशन है मेरे पास। अब सेकंड चीज क्या चाहिए मुझे, कॉपीज ऑफ परचेज ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट साइंड विथ मी बाय द बायर। अब आप समझिए इस चीज को, बड़ा प्रैक्टिकल इशू है। बोल तो दिया यहाँ पे हमें चाहिए परचेज ऑर्डर की कॉपी, बट बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि वर्बल ऑर्डर मिलता है, फोन पे ऑर्डर मिल गया, आपने बनाया सामान एंड सामने वाले को सप्लाई कर दिया, देयर इज नो रिटन कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज नो रिटन परचेज ऑर्डर। तो क्या हम यहाँ अप्लाई कर पाएंगे? तो उसका एक सोल्यूशन निकाला है, बिकॉज इंडियन सिनेरियो में नॉर्मली ऐसे ही होता है कि वर्बल आपको चीज मिल गई, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी कंपनी से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला हो, वहां फिर भी सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होता है। तो अब किस तरीके से हम इसको प्रोसीड करें, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक सोल्यूशन दिया हुआ है। अगर आपके पास परचेज ऑर्डर है रिटन, ठीक है, तो आप वो यहाँ पे दिखा दीजिए एज एन एविडेंस कि हमें यहाँ ऑर्डर मिला था और इसके तहत ही हमने सामान बना के आगे सप्लाई किया है। बट इफ यू डू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ परचेज ऑर्डर रिटन, कोई आपके पास अग्रीमेंट नहीं है बायर के साथ, then in that case you have to file a simple affidavit saying that I received an order on so and so date for this much quantity from the buyer and for this much amount, something like that. So it has to be there on the affidavit that you got some kind of purchase order. तो एफिडेविट से भी आपका काम चल जाएगा इफ यू डू नॉट हैव अ रिटन परचेज ऑर्डर। बट गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि आप जब भी ऑर्डर लें, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ डिलेड पेमेंट प्रॉब्लम्स, यू शुड हैव अ रिटन परचेज ऑर्डर विथ यू। तो अगर आपके कोई क्लाइंट्स हैं, मैं प्रोफेशनल्स को थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि आप अपने क्लाइंट्स को इस तरीके से गाइड करिए दैट इफ दे डू नॉट हैव दिस टेंडेंसी or mentality of having a written purchase order, then please ask them to adopt this method. क्योंकि रिटन चीज का जो एविडेंस होता है वो ज्यादा आप इजीली सामने वाले को प्रेजेंट करके और केस अपने फेवर में करवा सकते हो, बजाय कि वर्बल एविडेंस के, क्योंकि वर्बल चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं प्रूव करना। So it is always advisable to have written purchase order. But in this particular scenario, even if you do not have a written purchase order, then still you can go ahead and file an application here in MSME Samadhan if you present it with an affidavit. So affidavit will be the second important document or the purchase order, whichever you. Next is the copies of invoice or bills raised against by the buyer. अब ये क्या है आप समझिए। पहला परचेज ऑर्डर मिला, आपने प्रोडक्शन किया, आपने सामान सप्लाई कर दिया। तो जब आपने सामान सप्लाई किया होगा, आपने कोई इनवॉइस भी तो रेज किया होगा, आपने कोई बिल रेज किया होगा, और आजकल तो जीएसटी अगर आप पे लग रहा है तो वो ई वे बिल और वो सब आपके पास रहता है डॉक्यूमेंट। तो वो चीज आप यहाँ पे एविडेंस की तरह शो कर सकते हैं।
The government wants to really see whether you have actually billed that amount or not, और actual amount कैसे है government को कैसे पता चलेगा, by looking at your invoices. तो invoice की कॉपी भी यहाँ पे लगेगी। ये सब ऑनलाइन सिस्टम है, तो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स कुछ भी फिजिकल सबमिट नहीं करना, एक तरीके से सब ऑनलाइन कॉपीज आपको यहाँ पे लगेंगी, अटैच होंगी इमेजेस। नेक्स्ट इज बैंक स्टेटमेंट शोइंग पार्शियल पेमेंट्स इफ एप्लीकेबल। अगर कभी भी कुछ पेमेंट हुआ है रिगार्डिंग दैट, सपोज आपका इनवॉइस अमाउंट था 1 लाख रुपीज एंड यू हैव रिसीव्ड सपोज 20,000 अगेंस्ट इट, सो still the balance amount is 80,000. So you are filing a case for that remaining 80,000 only. बिल तो पूरा 1 लाख का दिख रहा है, देन बैलेंस अमाउंट आप कैसे शो करेंगे कि 20,000 मेरे बैंक में आ गया था, तो बैंक स्टेटमेंट वो आपका शो करेगा कि यस यू हैव रिसीव 20,000 अगेंस्ट इट एंड स्टिल 80,000 इज पेंडिंग। तो आपका जो लेजर अकाउंट है वो भी आपको वहां दिखाना पड़ेगा जहां पे रिमेनिंग अमाउंट शो हो रहा होगा, along with your bank statement saying that partial amount has been paid. और जहां कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ है ऑब्वियसली आपको बैंक स्टेटमेंट आपका शो करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज नथिंग हैज बीन पेड एंड द फुल अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड इन योर बैलेंस शीट। अगर आपके बैलेंस शीट में अमाउंट नहीं दिख रहा तो फिर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी जब आप उसको अपना रिसीवेबल मान ही नहीं रहे देन व्हाई यू आर फाइलिंग अ केस। सो इट हैज टू बी देयर इन योर बैलेंस शीट एज वेल, ये आप मेक श्योर करिएगा। Next is there has to be some written communication or email sent to the buyer requesting for the payment. यहाँ बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, आप समझिए बायर ने पेमेंट नहीं किया या वो डिले कर रहा है पेमेंट के लिए, तो हम उसको खाली फोन करते रहते हैं कि भाई पेमेंट कर दो पेमेंट कर दो, या हम व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के छोड़ देते हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस आर जनरली नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड एविडेंस। आपको मेल करना चाहिए, सामने वाले पार्टी का आपके पास मेल आईडी होना चाहिए और आप उसको रिटर्न कर मेल पे डाल रहे हैं कि this is the amount due from your side, we have raised the invoice of this and this amount and still we have not received the payment. तो वो एक ट्रैक आप दिखा सकते हैं कि हमने इतनी बार उसको ईमेल किया, इतनी बार हमने रिटर्न कम्युनिकेशन किया एंड स्टिल द पार्टी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आवर मेल्स, या उसने जो भी रिस्पॉन्स दिया कि हम थोड़े टाइम में पे कर देंगे थोड़े टाइम में पे कर देंगे, वो रिस्पॉन्स भी आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। बट इट बिकम्स अ प्रॉब्लम देन देयर इज नो रिटर्न कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड। सी एट इनिशियल लेवल जब आप केस फाइल करते हैं तब अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी आप एटलीस्ट एप्लीकेशन तो फाइल कर सकते हैं, बट मीनवाइल मेक श्योर कि आप उनको मेल कर दें या कुछ भी आप रिटर्न कम्युनिकेशन कर दें, सो दैट जब भी आपको बाद में बुलाया जाएगा केस की सुनवाई के लिए उस टाइम पे आप ये एविडेंस शो कर सकें। ठीक है, तो इनिशियली अगर आपने नहीं भी किया है तो आप बाद में जरूर इसको मेक श्योर करिए दैट यू हैव प्रॉपर रिटर्न कम्युनिकेशन विद द पार्टी एंड ईमेल्स आपने किए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज अ डॉक्यूमेंट कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट्स विच इज ऑप्शनल। सी क्योंकि ऑलरेडी मैंडेटरी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ द पेमेंट इज डिलेड 3 times इंटरेस्ट ऑन द बैंक रेट विल बी गिवन टू यू। अगर आपने कैलकुलेट खुद करके दे दिया कि इतना इंटरेस्ट होना चाहिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विल कैलकुलेट इट फॉर यू। तो ये एक चीज है जो ऑप्शनल है, इनिशियली आपको करने की जरूरत भी नहीं है, इफ दे रिक्वायर देन ओनली यू हैव प्रोसीड विद दैट। देन नेक्स्ट इज अगर कोई आपका लीगल अग्रीमेंट हुआ हुआ है, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइडेड थे पेमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो आपको जरूर आपको यहाँ एविडेंस के तौर पे रखना है। अगर कुछ नहीं था तो ठीक है, दिस पॉइंट विल बी ऑप्शनल। नेक्स्ट इज एन ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द एमएसएमई if a representative, that is a CA or a lawyer, is filing the case on behalf of the enterprise. इनिशियली जब आप वेब पोर्टल पे इसको करेंगे, अभी हम प्रैक्टिकल भी इसको समझ लेंगे किस तरीके से काम होता है, तो जब आप वेब पोर्टल पे या वेबसाइट पे जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसके बाद ये एप्लीकेशन आगे जाती है, हम वो प्रोसेस समझते हैं, तो बाद में फिजिकल आपको वहां पे बुलाया जाता है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, टू अंडरस्टैंड द केस। तो जब तक एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल हो रही है तब तक तो आपको कोई ये ऑथराइजेशन लेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इन केस यू आर नॉट विलिंग टू गो ऑन योर ओन फिजिकली, आप खुद नहीं जाना चाहते, तो फिर उस केस में क्या होगा, आप एक सीए को अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स में भी होता है कि इनकम टैक्स का आपका कुछ ड्यूज हैं, कुछ केस चल रहा है आपका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू कोई नोटिस आ गया, तो एक रिप्रेजेंटेशन सीए करता है वहां पे आपके बिहाफ पे। सिमिलरली जीएसटी में भी इसी तरीके से होता है, तो एक ऑथराइजेशन लेटर एक एमएसएमई बना के दे देता है यहाँ पे सीए या लॉयर को कि दे कैन रिप्रेजेंट देयर केस
इन फ्रंट ऑफ द काउंसिल। तो ये एक लेटर की जरूरत उस समय पड़ती है देन you will be physically called to present your case, right? So this is the process. Let us understand how it works, the whole scenario. So there are 8-9 steps overall to cover this whole process. Firstly, if you see, entrepreneur will file an application online. आप ये वाला पॉइंट यहाँ नीचे जो लिखा है इसको देखिए, एंटरप्रेन्योर विल फाइल द एप्लीकेशन ऑनलाइन टू द रिस्पेक्टिव काउंसिल आफ्टर 15 डेज काउंसिल विल टेक एक्शन ऑन द एप्लीकेशन। तो 15 डेज टाइम बाउंड कर दिया इसने। जिस दिन आपने एप्लीकेशन पोर्टल पे लॉन्च कर दी, जब आपने पोर्टल पे जब भी अप्लाई कर दिया, विद इन 15 डेज जो काउंसिल है उस पे अब एक्शन ले लेगी। 15 दिन दिए जाते हैं कि एक बार सामने वाली पार्टी को इंटीमेशन चला गया है, वो पेमेंट कर दे तो ठीक है, नहीं तो फिर काउंसिल की तरफ से एक्शन होगा। नेक्स्ट इज ऑनलाइन इंटीमेशन विल बी सेंड टू बोथ एंटरप्रेन्योर एंड रिस्पोंडेंट बाय द ईमेल। जैसे आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं 15 दिन बाद ये काउंसिल दोनों ही पार्टीज को एक नोटिस भेजती है कि इस तरीके से एक एप्लीकेशन फाइल हुई है, तो आपको दोनों को हम बता रहे हैं कि ऐसा कुछ एप्लीकेशन आपके रिगार्डिंग फाइल हुई है, और फिर आपको एक डेट भी दी जाती है कि जिस दिन आपको आके और वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना हो। तो थर्ड पॉइंट जब आप देख रहे हैं तो इसमें यही लिखा है, म्यूचुअल सेटलमेंट ऑप्शन फॉर द एंटरप्रेन्योर इज गिवन टू देम। तो एमएसएमई काउंसिल आपको बुलाती है एक पर्टिकुलर डेट तय करके कि इस दिन आपको आना है और अपना केस प्रेजेंट करना है। यहाँ पे आप अपने जो सीए हैं या लॉयर है उनकी मदद लेके यहाँ पे अपना केस प्रेजेंट करवा सकते हैं। सो एकदम टाइम बाउंड चीजें चल रही है कि 15 दिन के अंदर अंदर वो एक्शन लेते हैं, और फिर वहां से एक डेट फाइनल होती है, उस डेट पे आपको जाना है और काम करना है। यहाँ तक एक इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर से बताना चाहूंगी। सपोज मैं राजस्थान में अजमेर में हूँ और मैं यहाँ से गुड्स सप्लाई कर रही हूँ मुंबई, तो ये सुनवाई कहाँ होगी, ये जुरिस्डिक्शन कहाँ का आएगा? क्योंकि एप्लीकेशन तो आपने ऑनलाइन लगा दी, अब केस के लिए जब बुलाया जाएगा तो कहाँ बुलाया जाएगा? तो बेसिकली ये इस तरीके से चलता है, जहां पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस है सप्लायर का, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा होगा, तो सपोज मेरा प्रोडक्शन जो फैक्ट्री है वो यहीं अजमेर में ही है, तो अजमेर में केस की सुनवाई होगी, तो मुंबई से उस पर्सन को यहाँ अजमेर आना होगा सुनवाई करने के लिए, या वो अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे भेज सकता है। इन केस वो नहीं आता है या उसका रिप्रेजेंटेटिव अटेंड नहीं करता, तो एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है। एक्स पार्टी का मतलब हो गया, इन द एब्सेंस ऑफ द अदर पार्टी द डिसीजन विल टेक प्लेस। मतलब ऐसा नहीं है कि उसका वेट करते रहेंगे, कोई वेट नहीं करेगा, आपको जिस दिन बुलाया उस दिन आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आते हैं तो फिर वो वन साइडेड डिसीजन हो जाएगा। तो इट विल ऑलवेज बी इन द फेवर ऑफ द सप्लायर, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो आई ही नहीं। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है कि जुरिस्डिक्शन कहाँ का होगा, जो सप्लायर का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पे आपका ये जुरिस्डिक्शन माना जाएगा। ठीक है, इरिस्पेक्टिव आपने जहां भी कहीं सप्लाई करते हो गुड्स को। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आप ये देखिए, लिखा हुआ है काउंसिल कैन अप्रूव द एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन एंड कन्वर्ट इट इनटू द केस। पहले एक मौका दिया जाता है दोनों का म्यूचुअल सेटलमेंट करने के लिए, आमने सामने बैठा के बात की जाती है। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि नहीं दोनों मान रहे, तो उस केस में वो काउंसिल उसको कन्वर्ट कर देती है केस में। अब ये जब केस में कन्वर्ट हो जाता है, देन नाउ यू कैन गो टू सिविल कोर्ट एंड यू कैन गेट योर अमाउंट। वो फिर एक प्रॉपर जो सिविल कोर्ट में केस चलता है उस तरीके से होगा। तो अब आप सोचेंगे कि फिर फायदा ही क्या हुआ, अगर केस कोर्ट में जाना था तो हम यहाँ क्यों आए थे? आप समझिए, आप अगर डायरेक्ट केस फाइल करते तो आपकी कुछ एक इनिशियली फीस लगती है, वो फीस नहीं लगेगी अगर आप समाधान के थ्रू जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास कोर्ट में जाने के लिए एविडेंस क्या था? क्योंकि सारा काम वर्बल हुआ, अगर वर्बल है तो मैं उस केस में आपको बताना चाहती हूँ। तो अगर सारा काम वर्बल हुआ तो आपके पास एविडेंस ही नहीं है, आप प्रूव कैसे करोगे कि हमने पेमेंट किया था? आप पेमेंट मतलब हमने गुड सप्लाई किए थे और सामने वाला पे नहीं कर रहा, तो आपके पास वर्बल एविडेंस कोर्ट में नहीं चलते और उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं हो पाता। तो अगर आप समाधान के थ्रू गए थे तो एक प्रॉपर आपका एक केस समरी बन गई है ऑलरेडी, आपको वो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा सप्लायर को ही सपोर्ट कर रही है यहाँ पे, और जब आपने ये चीज समाधान के थ्रू कोर्ट में भेजी है तो ऑब्वियसली सप्लायर को बेनिफिट देते हुए केस का फैसला भी सप्लायर की तरफ ही होता है जनरली। तो ये एक फायदा हमें यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट इज काउंसिल कैन रिजेक्ट द एंटरप्रेन्योर एप्लीकेशन। ये एक और बात है, मान लीजिए आपने तो एप्लीकेशन फाइल करी,
काउंसिल को लगता है अननेसेसरी बात को बढ़ा रहे हैं, ये आपस में फैसला करके हो जाएगा, मैटर सॉल्व हो जाएगा, तो दे हैव द अथॉरिटी टू रिजेक्ट योर एप्लीकेशन ऑल्सो। जहां बात करके सब कुछ समझ में आ रहा है तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या आपके एविडेंस अगर सही नहीं लग रहे उनको, या कुछ मैनिपुलेटेड केस लग रहा है, तो काउंसिल हैज दैट अथॉरिटी कि वो अपने लेवल पे इसको क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। आगे के पॉइंट्स अभी हमारे लिए इतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं 15 दिन के अंदर अंदर ये एक्शन हो जाते हैं। ठीक है, ये एक डेटा है हमारा, ये अपडेटेड है बिल्कुल। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो कितनी एप्लीकेशन फाइल हुई हैं अभी तक, तो 2,15,000 करीब एप्लीकेशन फाइल हुई हैं। ऑल ओवर इंडिया का डेटा है ये आपका, जो पोर्टल पे अवेलेबल है। इसमें से म्यूचुअल सेटलमेंट कितने हो गए, अराउंड 20,000 म्यूचुअल सेटलमेंट हो गए, यानी आगे कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर ही नहीं हुआ, सामने आमने दोनों बैठे और बात हो गई। क्योंकि हम अगर बात करते हैं तो फोन नहीं उठाती पार्टीज, तो गवर्नमेंट यहाँ इंटरफेयर कर रही है, दे आर ब्रिंगिंग यू टुगेदर एंड गेटिंग द मैटर सॉल्व। तो ये यहाँ पे म्यूचुअल सेटलमेंट से 20,000 अराउंड केसेस सॉल्व हुए हैं। कुछ एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग है, वो यहाँ डेटा आपको दिख रहा है, 51,000 अराउंड एप्लीकेशंस आर येट टू बी व्यूड बाय द काउंसिल। कुछ एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं। रिजेक्शन किस किस बेसिस पे होता है, मान लीजिए आपने परचेज ऑर्डर जो था आपका वो सबमिट नहीं किया, या एफिडेविट जो देना चाहिए था वो नहीं दिया, या आपका जो भी है इनवॉइसेस जो प्रेजेंट करने चाहिए थे वो मैच नहीं कर रहे, या आपके बैलेंस शीट में वो डिटेल नहीं दिख रही, तो अगर प्रॉपर एविडेंस नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। कई बार दोनों ही पार्टीज नहीं पहुंच रही तो अल्टीमेटली एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज कितने केसेस डिस्पोज ऑफ किए हैं अभी तक, तो टोटल 43,000 केसेस हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द MSEFC काउंसिल। सो दिस इज फैसिलिटेशन सेंटर और फैसिलिटेशन काउंसिल, जो जिनका डेडिकेटेड काम है आपके लिए ये समाधान करना। इनका कोई और काम नहीं है, ये बनी ही इसीलिए है कि जो डिलेड पेमेंट्स हैं उनको आप सेटल करवाएं। ठीक है, तो ये MSEFC जो वर्ड है, ये काउंसिल है जो आपका प्रॉपर खाली सिर्फ डिलेड पेमेंट्स वाला काम कर रहे हैं। नेक्स्ट इज विच आर केसेस विच आर करेंटली अंडर कंसिडरेशन बाय MSEFC। अभी एट प्रेजेंट कितने केसेस चल रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम आगे चलते हैं, ये हमारा डेटा जो हमने अभी तक बोला। अब पहले हम आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ले लेते हैं, फिर मैं आपको साइट पे एक बार प्रैक्टिकल बता दूंगी कि किस तरीके से ये चीज चलती है। किसी को कुछ भी पूछना है तो आप बताइए। You, ma'am, for a presentation and explaining topic in simplifying way. So now I request all the participants and delegates, if you have any question, you can unmute yourself and ask directly to the ma'am, or you can put your questions in the chat box also. Thanks for the nice presentation. I just wanted to know, am I audible now? Hello, हाँ, any questions from anyone? am I audible? Hello. Bhavesh ji, yes, you are audible. Please go ahead. Now, just I wanted to know, you said that along with the application, we have to submit the. Just a second, just a second. I want to know whether you are a professional or an entrepreneur, firstly. I just wanted to know, along with the application, you said that we have to submit some purchase orders or the contracts. हाँ जी, परचेज ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिखाने होते हैं, नहीं है तो आप एफिडेविट दे दीजिए उस Is चीज there का। any limit for that? Minimum amount or नहीं minimum? नहीं नहीं सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक आप कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन?
इसका भी एक मैं आपको सिंपल बताती हूँ। आपके पास सपोज 10 इनवॉइसेज हैं जिसका पेमेंट नहीं आया, आप उसका एक टोटल एक पीडीएफ बना के पोर्टल पे डाल सकते हैं। तो मल्टीपल इनवॉइसेस कैन बी क्लब्ड इन वन एप्लीकेशन। ऐसा नहीं है कि हर हर इनवॉइस का मुझे अलग अलग एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। आप क्लब कर दीजिए, पार्टी वाइज लगेगी ये। एक पार्टी से मेरा कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उसके हिसाब से मैंने एक एप्लीकेशन लगा दी। वो आपके लिए भी इजी रहेगा करना। एक ही पार्टी के 10 इनवॉइसेज हैं सपोज, तो 10 बार एप्लीकेशन लगाने में तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने भी ये बोला है कि मल्टीपल एप्लीकेशन, मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए एक ही एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं, दैट इज अलाउड। थैंक यू मैम। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा था। हाँ जी, एनीबडी एल्स? ठीक है, मैं एक बार आपको बस पोर्टल दिखा देती हूँ, हाउ इट वर्क्स, कैसे आप इसको देख सकते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, ma'am. आपको सिर्फ लिखना है एमएसएमई समाधान। इज इट विजिबल टू ऑल? Yes, ma'am. Okay. Actual, the name of the site, the actual URL is samadhan.msme.gov.in। आप अगर ये टॉप पे देख रहे हैं, samadhan.msme.gov.in, ये एक्चुअल साइट है जहां पर आप ये पूरा देख सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर जो मैंने डिस्कस किया, इट इज मेंशन्ड हियर आल्सो। आप चेक कर सकते हैं इसको बाद में भी अपने लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है एमएसएमई समाधान डिलेड पेमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। तो जितने भी डिले पेमेंट हुए हैं उसको मॉनिटर करने के लिए एक पूरा सिस्टम यहाँ पे बना है एमएसएमई समाधान के नाम से। ठीक है, ये डेटा जो अपडेट होता रहता है, हर दिन का डेटा है ये। आपको ये मैंने डिस्कस किया था कितनी एप्लीकेशंस फाइल हुई हैं। आप ये अमाउंट देखिए यहाँ पे, 84,000 केसेस फाइल हुए, आउट ऑफ विच अमाउंट पेबल, उसमें 84,000 एप्लीकेशन में अमाउंट कितना लिखा गया कि कितना अमाउंट पेंडिंग चल रहा है, 25,542 करोड़ अराउंड ये पेमेंट पेंडिंग है अभी लोगों का। उसमें से कितने केसेस डिस्पोज ऑफ हुए वो लिखा हुआ है, 43,000 केसेस अराउंड डिस्पोज ऑफ कर दिए। 84,000 में से 43,000 केसेस अराउंड डिस्पोज हो गए। और उसमें कितना अमाउंट इन्वॉल्व था, 7,105 करोड़ अमाउंट इन्वॉल्व था जो कि पे हो गया है लोगों को। तो आप अगर एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर एप्लीकेशन कैन बी रिजॉल्व बाय दिस मेथड एंड आपका अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज अ थिंग विच इज गिवन हियर। इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है। एमएसएमईडी एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है, तो ये सेक्शन 15 से लेकर 24 तक लिखा हुआ है क्लियरली कि डिलेड पेमेंट अगर होगा तो अप्लाई कर सकते हैं आप। इसमें यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के समेत अमाउंट मिलेगा, ये यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है सेक्शन 20 और 21 के अंदर। अब कौन अप्लाई कर सकता है, हमने बोला जिसके भी पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है एमएसएमई। इसमें सिंपल देखिए, एक चीज और बता दूं मैं आपको, एमएसएमई की डेफिनेशन में 3 चीजें होती है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो ये जो बेनिफिट है समाधान वाला, ये सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को दिया गया है। माइक्रो कौन होते हैं, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम रहेगा अगर, तो वहां पर आपको माइक्रो की डेफिनेशन में लिया जाता है। अगर आपका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो टिल 50 करोड़ ऑफ टर्नओवर यू कैन अप्लाई हियर। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी सिंपल थ्योरी बताई हुई है। अब मैं बताती हूँ आपको एप्लीकेशन फाइल कहाँ कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे जाना पड़ता है केस फाइलिंग। ठीक है, तो हम यहाँ केस फाइलिंग में चले गए। कैन एवरीवन सी माय स्क्रीन? आप देखेंगे ऊपर 4 टैब्स लिखे हुए हैं, इंग्लिश, देन केस फाइलिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स। इंग्लिश हिंदी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कन्वीनियंट जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें आप भर सकते हैं फॉर्म। देन यहाँ केस फाइलिंग, जब मुझे केस फाइल करना है तो आप यहाँ पे डाल के और फिर कर सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अपना यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा।
उस रजिस्ट्रेशन नंबर में कौन सा मोबाइल नंबर मेंशन किया था आपने, वो आपको मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। उसी पे वेरिफिकेशन मतलब उसी पे ओटीपी जाएगा अल्टीमेटली। ओटीपी आने के बाद एक फॉर्म खुलेगा जहां आपको अपने ये इनवॉइस और वर्क ऑर्डर और जो भी डिटेल्स है, अमाउंट कितना ड्यू है, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपकी भी पूरी डिटेल वहां पे मांगी जाएगी, क्या आपने प्रोडक्ट सप्लाई किया था, किस डेट को सप्लाई किया था एंड ऑल। और सामने वाली जो पार्टी है उसका भी डिटेल मांगा जाएगा, उनका बकायदा फोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, उनका मेल आईडी। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो पहले ले लीजिएगा। मैं वापस बता रही हूँ आपको, अगर आपके पास जो भी जिसका भी जिससे भी आपको पेमेंट लेना है, जिसका भी पेमेंट ड्यू है, उसका पर्सन का नाम, मेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये 3-4 चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जब नोटिस भेजेगी तो वो कहाँ किस एड्रेस पे भेजे, तो फॉर दैट रीजन दे नीड टू हैव अ प्रॉपर एड्रेस। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए और फिर आप ये फाइल कर सकते हैं। तो बस ये स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप यहाँ से डिटेल्स लॉग इन करिएगा और फिर एक फॉर्म खुल जाएगा और उसमें आप अपना पूरा डिटेल भर सकते हैं। आई होप द सेशन वॉज फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। जिसने भी कोई क्वेरी है तो आप अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू कैन टेक माय नंबर। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। मैं एक बार चैट बॉक्स में लिख देती हूँ। Vaibhav ji, if there is any question, we can continue. Otherwise, we can wind up the session. Yeah, ma'am, we can wait for another few minutes, ma'am. If anyone have question, they can type in the chat box, na, ma'am. So I requesting everyone, if you have any question or doubt, you can unmute yourself or ask directly to the ma'am, or you can put your questions in the chat box as well. कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा या जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Ma'am, I think there is no more questions, so can move ahead. I'm done from my side. Then. Okay. So our next session is on 21st December on the topic Sustainability Improvement Drive. It shall be taken by Dr. Sanjuni Gogawale. He shall cover why sustainability, what are drives across globe, what are UI initiatives, government initiatives, benefits and limitation, action plan, followed by question and answer session. ICS is pleased to provide you all its research and development integrated management system, that is QMS, CMS and OHSS, excellence in education management, ISO made easy in Gujarati, Marathi, Telugu and Hindi. For reading any of the above book, please contact me, Shrishma Kindalkar, on the given contact details. Feedback form, please register on www.sadgunsang.org and go in your login
and give your valued feedback to us. So thank you, Divya ma'am. Thank you all the participants and delegates to being a part of today's Sadgun Sun. We also have our official YouTube channel. On that, you can find our all recorded sessions of previous Sadgun Sun meet. So thank you, everyone. So now it's time to officially close the session.